All right, so let's use NCERT. Hmm. We have to do, we did last was universal relation. Yes, sir. Then there was an empty relation. Hmm. Okay. Nothing difficult. NCERT ने मतलब कुछ चैप्टर ठीक ठाक लिख दिए. Hmm. Okay. So I'm using NCERT only. Okay. All right. So there were two ways, right? One is a statement. The other is set builder form. Correct. Yeah, there are two ways of representing a relationship. Now, however, a relation is a set defined by R is also expressed as ARB and only if B is equal to by many authors. So depends on you want to use ARB or you want to use this R is equal to ठीक है. A is related to B. Hmm. या तो ये है या ये है. Now, one of the most important relationship which plays significant role in mathematics is an equivalence relationship. To study equivalence relationship, we first considered three types of relationships, namely reflexive, symmetric and RST बोलते हैं, ठीक है? Reflexive, symmetric and transitive. ठीक है. This was nothing new. ये हमें पहले से ही पता था. Hmm. The representation of a relationship can be done either ways, like this or this, like this. Okay. All right. So let's study definitions. I'm purely using NCERT right now. Okay. I think it's okay to ठीक ठाक दिया हुआ है तो काम चला लेंगे. In fact, one of the most original way of writing the maths, मतलब of writing is NCERT. Physics में थोड़ा सा मुश्किल है समझना, Hmm. but otherwise कट एंड पेस्ट किताब नहीं है ये कि किसी ने कुछ भी उठा के लिख दिया. Yes, sir. इंटरनेट से PDF डाउनलोड कर लेते हैं ना लोग, उसको हाँ. बंडल बना लो तो उसका नाम रख देते हैं किताब का. Hmm. They have written originally, authors ने लिखा है. So a relationship in a set is called reflexive. If it is A on A is wala relationship, it is symmetric if it implies that A1, A2 belongs to, for both A1 and A2 belonging to A, and transitive and A2, A3, if A1, A2 belongs, have a relationship with each other, and A2, A3 also have a relationship with each other. And this implies that A1, A3 will also have a relationship. हाँ. Then such a relationship is called as transitive. So there are two relationships here. तो ट्रांजिटिव है, बीच में एक रिलेशनशिप आता है और एक और रिलेशनशिप होता है और उन दोनों में जो कॉमन है
उसको हटा दें अगर, तो A1 A3 में भी डायरेक्टली रिलेशनशिप बन जाता है. लेट्स पिक अप एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीस, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना. हाँ. तो मतलब व्हाट इज दिस इफ A for every value of A, what is the difference between reflexive, symmetric and transitive? Yes, sir. Let's elaborate on them. So all these three are equivalence relationship. ठीक है. Now, what is an equivalence relationship first? Let's focus there. English है कुछ भी नहीं. It's all some fluff. Fluff का मतलब होता है lot of big words being used, but no. Let T be a set of triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1, T2. T1 is हाँ. congruent to T2. Show that R is an equivalence relationship. Yes, sir. That's it. So R is reflexive since, first of all, see reflexive. A on A for every value of A. R is reflexive since every triangle is congruent to itself. Further, T1, T2, R is congruent to T2 is congruent to T1. Hence, R is symmetric also. Moreover, if T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, then T1 is congruent to T3. So if all three conditions are met, हाँ. are mentioned, we will come to each, understanding each one of them, don't worry. Reflexive, symmetric, transitive. अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाए किसी रिलेशनशिप में, such a relationship will be called as a equivalence relation. ठीक है. तीनों. But we'll discuss what is reflexive and what is this. Exactly इसकी English क्या है, let's discuss that. Okay, sir. So that you can define reflexive individually. कि reflexive का क्या मतलब होता है. हम्म. तो मतलब इसमें जब equivalent बोलेंगे तो some questions will have कि अच्छा ये फंक्शन, ये रिलेशनशिप जो है सिमेट्रिक तो है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. Okay, so तीनों को चेक करेंगे हम इसके अंदर. बट लेट्स फर्स्ट कम टू इंडिविजुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक. Okay, sir. ओके, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं थोड़ा. ये बहुत ठीक है. ज्यादा वो था ना, साइन वाइन बना रखे थे. हम्म. So let's study in simple language what is reflexive relationship. सिर्फ इंग्लिश है, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू वरी. Yes, sir. सिंपल. Okay. A relationship on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. हर, ये यही था ना, हाँ. A on A Yes, for sir. all A's. मतलब everything is linked, every A is linked to the other A.
ऐसा नहीं है कि डोमेन और छोटी है और रेंज अलग है। जितनी डोमेन है उतनी रेंज है। ठीक है। For a reflexive, for a relation to be reflexive, the above condition is true for all elements in a working rule. Now, for a finite set to say relation is not, it is enough to show that there exists at least one element in A which does not exist in the relationship. जैसे कई बार हमने एग्जांपल लिए थे, उसके अंदर लास्ट का छूट जाता था। जैसे हमने लिया हाँ, था A is equal to B+1, राइट? करेक्ट। और हम ए लिखते थे, तो ए वॉज 1 2 3 4 5 6। बट बी जब हमने बनाया था, मतलब जो दूसरा ए बनाया था हमने, उसके अंदर हमने A+1 एक एक्स्ट्रा लेना था, तो ये 2 बन गया था, ये 3 4 5 6 ही ले सकते थे, क्योंकि वही लेने थे जो ए के अंदर है। कुड नॉट टेक 7। यस सर। Such a relationship is not reflexive because the every element of A is not linked to every element of A. ये इसके साथ लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, और ये भी लिंक्ड है, लेकिन ये किसी के साथ लिंक नहीं हुआ, क्योंकि समझ गया। कंडीशन इज दैट इट हैज टू बी A if every element of A is related to itself. अब ये itself से लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दूसरा भी लेना है वो A के लेने हैं सिर्फ। A ऑन A का मतलब ये होता है। ओके। राइट, मैं ले लेता ए और दूसरा ले लेता 2A, तो बन जाता 1 2 3 4 5 6। ये बन जाता 2 4 6 8 10 एंड 12। हाँ, इसमें सब लिंक हो गए एक दूसरे से, डबल है। करेक्ट। So every element of A is related to itself, although it doubles, but it is linked to itself in some way. क्या डबल करके ही है। So we can say so there is एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हर ए के लिए उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट रेंज में बना देता है। ये तो डोमेन होता है ना, हाँ, ये सर। तो रेंज में उसका कोई भाई बंधु है, मतलब उस साइड पे। ठीक है। इसमें नहीं है भाई बंधु, इसका कोई भाई नहीं है, हम्म इसमें भाई है। अब मैं समझ इसको गया। लिख देता, मान लो ये B+ कुछ और लिख देता, B+2 लिख देता मैं, तो इसका जो पहला आंसर आता वो क्या आता? 3। 3 हो रहा था। हाँ, अगला आंसर होता 4। 4। अगला आंसर होता 5। 5। अगला आंसर होता 6। 6। ये भी नॉन रिफ्लेक्सिव है ना। हम्म 1 के लिए 3 अवेलेबल है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 5 है, 4 के लिए 6 है, और 5 और 6 के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सर। तो कोई ना कोई अगर डोमेन अगर है, 1 2 3 4 5 6 डोमेन की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन डोमेन अगर ये है, तो करस्पॉन्डिंग रेंज भी 1 to 1 होनी चाहिए थे ना। हर एक के लिए करेक्ट। कुछ ना कुछ एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं हुआ। हम्म थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ। राइट? तो रिश्तेदार होना चाहिए उस साइड पे, ए का अपने से ही कोई रिश्ता है, ऐसे A/2, तो मतलब ए है, मान लो 2 4 6 8 10, तो रिश्तेदारी बनाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5, बट रिमेंबर 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, राइट? हाँ, सॉरी, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये दोनों तो, इनके लिए तो कोई भी नहीं है, नहीं। ये इसके लिए आ गया, ये ए के अंदर है इंक्लूडेड, हाँ, लेकिन सबके लिए तो नहीं है ना ये अवेलेबल, नहीं। तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ठीक है।
supposing there is a two situations. One is there is an infinite set, and replace B by A in that definition and check whether ये जो हम करके देख रहे थे, if it is valid or not valid. Reflexive. Infinite set में check करके देखना पड़ेगा. एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव के. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ी डिस्कशन से all that confusion will go away. Just remember that these are a relationship, and relationship की नेचर में हर ए के करस्पॉन्डिंग एक ए होना चाहिए, और सारे सब ए के करस्पॉन्डिंग ए आना चाहिए. So let's say this example. एक रिलेशनशिप है, ए इज ग्रेटर देन बी, और ये दे रखा है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, तो रिलेशनशिप अगर मैं बनाऊंगा टू, तो दूसरा भी मुझे टू ही लेना है, ए. तो टू इज ग्रेटर देन वन, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है. दोनों ए के अंदर हैं, टू और वन. करेक्ट. तो टू और वन का एक रिलेशनशिप बना लिया. थ्री इज ग्रेटर देन वन, थ्री इज ग्रेटर देन टू, ये भी बन गया. फोर इज ग्रेटर देन वन, फोर इज ग्रेटर देन टू, फोर इज ग्रेटर देन थ्री, ये भी बन गया. एक रिलेशनशिप बना लिया, पर चेक करा फिर कि जो वन के करस्पॉन्डिंग वन वन, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे रिलेशनशिप में. हाँ. तो वन को कोई जोड़ीदार नहीं मिला, नहीं. वन को, और टू को भी नहीं मिला एक्चुअली, ध्यान से देखो तो. हाँ, ये सब. टू टू. थ्री को दो मिले, थ्री को थ्री थ्री नहीं मिला, और फोर को फोर फोर नहीं मिला. करेक्ट. जबकि सबके जितने पॉसिबिलिटीज हैं सारी इंक्लूडेड होनी चाहिए थी. अगर ये भी इंक्लूड हो जाए तो सभी इंक्लूड हो गया ना फिर तो. ये सब. तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है, समझ गया. Why we did not write 1 2? 1 2 नहीं लिखा हमने, because A is greater than B. ये तो वैसे ही गलत है. ये सब. उल्टे लेने थे ना हमें. A should be greater than B. करेक्ट. But B will come from A only. नाम है सिर्फ B. आएगा इधर से ही. अंडरस्टूड. इनमें से ढूंढना है वो कि कौन सा सेटिस्फाई करता है. Let's take another example. ये सब. Whether reflexive or not, धीरे धीरे आ जाएगा, don't worry. शुरू में these words are bit difficult for everyone, but gradually you will get accustomed to the new language. ठीक है. और है बड़ी आसान है. दो चार एग्जाम्पल, अगर एक भी एग्जाम्पल स्ट्राइक कर गया तो कभी भूलेगा नहीं फिर. ये सब. So we will revise it also, don't worry, so that you forever. Let's take this example. Now he says, let's take an example of A minus B. तो रिलेशनशिप जो A दिया हुआ है, that is 1 2 3 4. ठीक है. A minus B. So ठीक है. अपने से ही करना है, तो दूसरा भी A लिख लेता हूं मैं. 1 2 3 4. रिलेशनशिप बनाना है हर एक का हर एक से. एक बना है 0 minus 0, A minus B. अच्छा, 2 divides A minus B or not, वो वाले चुनने हमने. ठीक है. ठीक है. अच्छा, 0 minus 0. A relationship is set of integers is defined as A is related to B if 2 divides A minus B. So where is A minus B? तो A आया 0. एग्जाम्पल लिया 2. सॉरी, कंसिडर द एग्जाम्पल 2. तो ये नहीं है, सॉरी, ये एग्जाम्पल नहीं है 1 2 3 4 वाला.
लेट अच्छा, तो मी एग्जाम्पल कॉपी वन द, ना। हाँ ये गलत है ये, वही मैं सोच रहा था, इसमें तो जीरो ही नहीं आएगा. Let me just copy that example first and then let's use it. A relation R in the set of integers is defined as R. अच्छा मतलब just जो मर्जी इंटीजर ले लो, there is no limitation, infinite है. ओके। ठीक है, so you take 0 minus 0, हम्म। any two integers subtracted, 0 minus 2 minus 2. So ये इसने सारे लिख दिए हैं जो possibilities हैं. अब समझ गया। ऊपर चलते हैं जरा, मतलब he has written all possible integers. हम्म। 0 minus 0 दो लिए, डिविजिबल बाय 0 minus 2, 0 minus 4, 1 minus 1, 1 minus 3, 1 comma 5, 2 सारे comma पॉसिबल। 0, 2 सारे हाँ। वो ले लिए हैं which are divisible and you can see there is no end to it. हम्म। 0 minus 6 कुछ भी ले लो, दो. तो for all a belonging to integer, a minus a is equal to 0 is divisible by 2, so R is reflexive. ध्यान से पढ़ो. Here for all a which are integers, a minus a is equal to 0 is divisible by 2, so R is reflexive. ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया क्या मतलब है इसका. ठीक, कैसे एक्सप्लेन में क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं समझ I could कि not understand this. Wait. So he says there is so these are the sets which satisfy the relationship. And then he says, so these are the sets that satisfy the relationship that are if a relation R is the set of integers. In the set of integers is defined as a relationship of A with B if 2 divides A minus B. Okay. And for a reflexive, there must be every element of A should be related to itself. Right? For every A should be related to itself. हाँ। So इसमें how is this? So this is the case of infinite. So for every A related to B, and replace B by A in the definition of relation and check valid or not. If valid, so he says this is reflexive. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Wait. So example number 2 में R is reflexive, he says, because इसने लिखा नहीं A minus A equal to 0 लिखा. That is only these examples. 0. अच्छा. Yeah, I'm not clear on this example. Let's take another example. Wait. So I'm not very convinced about this example. Reflexive का ही है ये, हम्म। but doesn't look okay. Convincing नहीं है बहुत. Okay, so let's do a quick revision of definition again. Okay, I told you we will revise it, right? यस सर। तो एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि डेफिनेशन नहीं समझ में आई क्या हमें इसकी.
This is likely to happen if the definition is not clear to you. If A is related to every element of A is related to itself. ये देखो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखो. हाँ. सिमेट्रिक की देखो. थर्ड की देखो. थर्ड ट्रांजिटिव ही सिर्फ मुझे ठीक से समझ में आया. If one element is related to the second and second is related to third, then the first is related to third. ये मुझे समझ में आ गया था. रिफ्लेक्सिव में मुझे एग्जांपल से नहीं समझ में आया, but definition wise I don't have any doubt. Each element is related to itself. Okay, एग्जांपल ले रहा हूं मैं अब. कोई डायग्राम की हेल्प से समझा दिया होता ना थोड़ा, would have been slightly easy. Reflexive में every element should be linked to itself. Okay. But okay, here is a diagram of reflexive relationship, which is what I had in my mind actually. I also see it this way, but when we try to solve it, why it doesn't appear to be identical? Wait. Read it. This is the diagram of a reflexive relationship. Every value of A is linked to itself. Diagram दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है. Every value is linked to itself. But जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये डायग्राम गायब हो जाता है. ये doesn't work. Okay. मुझे लगता है इन्होंने जो थ्योरी दिया है इनकम्प्लीट है यार. टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव दिस इज नॉट इनफ थ्योरी. बट एनीवे, तो फंस गए इसमें. एक डेफिनेशन से इसको समझना, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल. बट एनीवे वी हैव टू डू इट. एनसीईआरटी ने दे दिया तो दे दिया. एक भी ढंग का एग्जाम्पल मिल जाए ना अगर, हाँ. इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. एक मिनट. मुझे लगता है ट्रांजिटिव इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. हाँ. Okay, let's talk about reflexivity again. Face of it is very simple यार. रिफ्लेक्सिव का मतलब है एवरी एलिमेंट इज लिंक्ड टू इटसेल्फ.
हाँ Why then it is so hard? एक एग्जांपल समझ में नहीं आया, ये एग्जांपल डायग्राम भी समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, ट्रांजिटिव तो बहुत इजी लग रहा है मुझे समझना, बट ओके, रीड दिस. गिवन अ सेट ऑफ ए, कोई ए के सेट में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे ये है. देन देयर इज अ हाँ रिलेशनशिप इन ए. R is reflexive if and only if all the ordered pairs of the form are in relationship for every. अच्छा, if ये definition देखी, if all the ordered pairs of the form जो possible हैं बनने के लिए हाँ are included. So let's say A is 1 2 3, then कितने ordered pair बन सकते हैं A और A के आपस में? दोनों A हैं अगर 1 तो 1 1 हाँ 1 2 ये सब 1 3 2 वन 1 थ्री भी बन जाएगा। हाँ 2 2 2 3 3 2. अब इससे 4 लिखे हैं रिलेशनशिप में. हम्म Now he says this relationship is reflexive because it contains the ordered pairs 1 1 2 2 and 3 3. The relationship R2 is not reflexive because it lacks the ordered pair and thus fails to meet the definitional requirement that it contains XX for every X in A. Another way to state the definition of reflectivity is to say that relationship R in A is reflexive only if the identity relationship in A is a subset of R. The relationship has the same birthday as in the set of human beings is reflexive. Acha, if two humans have same birthday, हाँ then the relationship they have is same as between two uh, between a the relation they will have is reflexive. If two humans have same date of birth, हाँ then it will become a reflexive relationship. Has the same birthday as. Reflexivity R1. Reflexive because it contains the ordered pair 1 1 2 2. ये तो ये दोनों सेम बता रहे हैं ना, x x x x. अगर मैं लिख दूं x और x प्लस 1, तो b बन जाएगा 2 3 4, हाँ और ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 2 3 और 2 3 और 4 के बीच में एक बनेगा 1 2 वन टू हाँ 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3. तो ये कह रहा है 2 2 और 3 3 को ये मानेंगे सिर्फ. नहीं यार, समथिंग रॉन्ग. रिफ्लेक्स रिलेशनशिप, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप. एक ट्राई और मार रहा हूं मैं. ओके ढूंढ तो मैं लूंगा ही. मतलब example of reflexive relationship is a relation is equal to on the set of real numbers.
हम भी यही बोल रहे हैं, इज इक्वल टू। Wait, just give me 1 second. Okay, sir. I think we will need to do some examples. और ये एग्जाम्पल जो है ना, ये let me do some examples to discuss this. Definition तो समझ में आ गई है, but the examples are not coming clearly. कि हाँ, in a reflexive relationship, if A is related to itself, then how do you create the ordered pairs? Okay, let's take this example. Okay, I'm just taking an example now. Hopefully this will help us understand reflexivity. मुझे लगता है कि the theory is insufficient. The okay. theory we are doing is not sufficient to understand reflexivity. You cannot understand it just by saying that every element of A is related to itself and that's the answer. I think this is too little a theory for anyone to understand reflexive relationship. और इससे जो आगे की theory है वो syllabus के beyond है. But let's try to understand. Let me try it once. So let's say you have a set which is A is equal to 1, 2, 3. ठीक है. Okay, and then let's write a relationship using this A and A, another A, 1, 1, 3, 3, 2, 1, and 3, 2. Okay. वन कॉमा वन और एक लिखते हैं हम. एक रिलेशनशिप में लिख रहा हूं, फिर हम पहचानते हैं कि वो क्या है. एक मैंने लिखा है 1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, राइट. हाँ. Yes, sir. एक ये चेक करते हैं क्या है और दूसरा लिखते हैं अब हम. द अदर रिलेशनशिप आई एम राइटिंग इज 1, 1, 2, 2. मुझे खुद एक्चुअली याद नहीं आ रहा व्हाट इज द पॉइंट व्हिच इज मिसिंग. Definition only is not 1, 3 and let's say 2, 1. Now let's discuss कि कौन सा इनमें से रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है. Okay.
a relationship is said to be reflexive if every element of A is related to itself. ये definition है ना? Is related to itself. तो इन दोनों में which one is not related to itself? 1,1, 3,3, 2,1, 3,2. What is the difference between these two relationships? One comma one, 2,2, 3,3, 1,3, and 2,1. If every element of A is related to itself, इस केस के अंदर is every element of A related to itself or not? Related to itself, and whether every element of A is related to itself or not. अच्छा, ट्रिक ये होगी कि जो रिलेशनशिप आप चेक कर रहे हो रिफ्लेक्सिटिविटी के लिए, हाँ। उसमें कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में तो हो, बट जो रिलेशनशिप है उसमें मिसिंग हो. ए में तो हो बट रिलेशनशिप में मिसिंग हो. तो इन दोनों में से किस में मिसिंग है? ए में तो है लेकिन रिलेशनशिप में गायब है. वन कॉमा वन, 2,2, 3,3, 1,3, 2,1. 1,1, 3,2, 1,1, 3,3, 2,1. Why is this a reflexive relationship with our definition that every element of A is related to itself? 1,1 है, 3,3 है, 3,2 है, 2,1 है. एंड वाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें भी 3,3 है, हाँ। इसमें और तो कुछ कॉमन ही नहीं है. 1,1 कॉमन है. वन कॉमा वन, 2,2, 3,3, 2,1 भी कॉमन है. हम्म। और कुछ कॉमन दिख रहा है? ये 2,1 भी कॉमन हो गया. 1,1, 1,3. इसमें इसमें एक ये दिख रहा है, ये इसमें है 1,3 और 2,2, और इसमें है 3,2. So every element, a relationship R A is reflexive only if is a subset of the identity relation A is a subset of relationship. Take the relationship 1,1, 2,2, 3,3, 3,1. R1 is reflexive because it contains the ordered pairs 1,1, 2,2, 3,3. The relationship 1,1 is non-reflexive because it lacks the ordered pair
and thus fails to meet the definitional requirement for existence of 1,1. एक लास्ट टाइम मारते हैं फिर से, otherwise we will have to defer it. Okay. I'm not able to distinguish. It should be related to itself. Reflexive relationships. Exemplar में समझाया हुआ है. Let me try exemplar now. Maybe it is better. Empty types of functions, surjective. A relationship is said to be reflexive if A and A are related to each other. Composition of function, invertible function, solved example. अभी तो हमें यही दिक्कत आ रही है कि हाउ डू वी, ये तो सीधा वही पूछ रहा है इक्विवेलेंस, मतलब तीनों चेक करो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके अंदर. दिस इज अ प्रॉब्लम. पढ़ना पड़ेगा मुझे खुद ही. I've forgotten this. There's some page. ऑर्डर्ड पेयर भी बना के देख लिया. पहले पढ़ा. हैव यू स्टडीड इट अर्लियर एवर? Yes, sir. तब समझ में आया था? हाँ, तब तो आ गया था. समझा दो यार मुझे फिर. मुझे याद नहीं. याद नहीं है फिर समझ कैसे आया? उस टाइम पे तो मुझे अच्छे से समझ आया था. अच्छा, नहीं मुझे नहीं आता यार ये, सॉरी. इक्विवेलेंस. एक भी मिल जाए ना एग्जांपल जो क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो, इट विल बी इजी. हम्म. Just one example that this is the way we create ordered pair and this is why it is not reflexive. किसी ने मतलब एग्जांपल नहीं दिया कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक. भी इजी लग रहा है समझना. It should be linked to, related to itself. Related to itself. इसका एक वीडियो देख सकते हैं हम या तो यूट्यूब पे. हाँ देखेंगे, देखना ही पड़ेगा. Okay. If A on A, reflexive, R division, A divided by B. I'm telling you the method is incomplete and there is no way with this knowledge we can do this. This is not a okay. Let's take an example. I'm 100% sure if I remember that this theory is insufficient. This is not the way you solve a reflexive problem. Reflexivity के लिए there is some other concept. Okay. Which is not mentioned here. If my memory serves me right, there is some point which is missing, and definition though is very simple, but technically when we try to solve it, working is not like this. Working में एक step और भी होता है जो करना पड़ता है और तब पता चलता है उसके बारे में. Yes, sir. See in your notes somewhere if you have this mentioned somewhere, a solved example. You can send me on Telegram. Okay.
a relationship R fun on A, 1, 2, 3, 4 defined as R fun. Okay, so there is a A and we define a relationship called as 1, 2, 2, 2, 3, 3. कोई बना लिया इसने relationship? फिर बोलता है कि why this is not a reflexive relationship? क्योंकि एक ordered pair 1, 1 भी बन सकता था जो नहीं लिया. हम्म तो ये कहना चाहता है कि अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग हो बराबर वाला, जैसे 2, 2 हाँ है, 3, 3 भी है, 1, 1 है, तो ये तो बेयर मिनिमम होने चाहिए, हम्म ये तीनों. हाँ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गया. भाई अगर 1, 2 है तो उससे कि व्हाई इट डजंट सर्व द पर्पस, व्हाई डजंट मेक इट रिफ्लेक्सिव, व्हाई ही वांट्स 1, 1 ओनली. सिमिलरली लेट्स गो टू दिस वन, लेट्स गो टू दिस एंड दिस, राइट? यस सर. इफ यू सी, इसके अंदर 2, 2 नहीं है, नहीं है. हाँ. so this is non-reflexive with that logic, और यही आंसर है. ठीक है. द आंसर इज कि ए अपने हिसाब से मिनिमम लिंक्ड होना चाहिए अपने से. हाँ. इसमें देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, आपस में तो लिंक्ड है सारे, रिफ्लेक्सिव. यही आंसर है. अच्छा. समझ आया क्या ट्रिक है? हाँ. यस सर. यू द बेयर मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स यू नीड इज दिस. ये अगर हम्म सारे अवेलेबल हैं तो रिफ्लेक्सिव है. बट लेट्स डू अ टेस्ट. अभी भी पक्का नहीं है, हाँ. क्योंकि ये करने के लिए तो कोई मेथड था यार, विच आई एम फॉरगेटिंग नाउ. सर घुमा दिया है. और रिफ्लेक्सिव के अंदर भी नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होता. रिफ्लेक्सिव के अंदर देर आर 3 टर्म्स, वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, वन इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्सिव एंड द अदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. 3 होते हैं. तो हम्म मेथड ऐसे नहीं होता कि बस आपने लिख दिया ऑन इटसेल्फ ये हो गया जी रिफ्लेक्सिव. डजंट वर्क लाइक दिस. हाँ. बट अभी जो छोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3 माने अपने आप से लिंक होना जरूरी है. वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 चाहिए हमें. ठीक है. एक और चेक कर लेते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए. अगर उसमें भी यही आंसर आया हम्म तो पक्का हो जाएगा ना कि मैच हो रहा हाँ है हमारा बिल्कुल. आंसर. ढूंढ तो लेते ही रहे लेकिन ये, हाँ, यस. read if I read the definition again, this ordered pair जो है ना XX वाला, हाँ. 1, 1, 2, 2, 3, 3, यही फोकस है डेफिनेशन में. वो कह रहा है 1, 1. मेरा ठीक एक है. क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं कि मैच हो जाए हमारी थिंकिंग. पढ़ना जरा इसको. हम्म ऑर्डर्ड पेयर कौन से वाले होने चाहिए? XX. बट अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग हो जाए तो इज इररिफ्लेक्सिव. अब देखा वर्ड दिख रहा है, नॉन रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव हाँ. और रिफ्लेक्सिव, 3 वर्ड है. हम्म ये थ्योरी इनकम्प्लीट है. एनीवे अब काम इनकम्प्लीट है, हमें तो काम चलाना है अपना, है तो है, क्या कर सकते हैं. यही है. ठीक है. ठीक है. फॉर द टाइमिंग लेट्स अज्यूम वी हैव अंडरस्टूड दैट ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तीनों हम ढूंढा करेंगे. अगर 4 हैं तो चारों ढूंढेंगे. हम्म तो पता चला जाएगा ना. अभी हम सिमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है. लेट्स स्टडी सिमेट्री नाउ. ओके. अच्छा तंग कर दिया यार. हाँ. कोई बात नहीं, कई टॉपिक होते ही ऐसे हैं. दे आर नॉट लड्डूस. हम्म
वही मैं सोच रहा था यार, क्या चक्कर है ये, मतलब व्हाट इज द मिसिंग। हम्म। तो मिसिंग है कि भैया ऑर्डर्ड पेयर 1122 33 44 वो होना चाहिए। समझ आ रहा है। अगर वो नहीं है तो भाई आप नॉन रिफ्लेक्सिव हो। हम्म, कोई बात नहीं। ओके, सिमेट्री। हाँ So if you have a given and binary relationship R in A, R is symmetric if and only if every ordered pair in R, the pair Y also is also in relationship. अगर X और Y रिलेशनशिप में है तो Y X भी रिलेशनशिप में होना रिलेशनशिप में जरूरी है। होंगे। ठीक है। उसका उल्टा। हाँ। चलो चेक करें एग्जांपल से, क्योंकि और ही समझ आने का तरीका नहीं है, कोई इंग्लिश और बड़ी कोई गंदी तरीका है। नहीं। हाँ। Rather than symmetry must always if ordered, then the pair with members reversed is also in relationship. Ah, देखा हम्म, देखा देखा. Let's see. So there is a relationship made using this. सारे ऑर्डर पे लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, 3 1। चलो 3 1 भी बना दिया, मान लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट मींस। नाउ 2 2 is a symmetric relationship because for every ordered pair, if you reverse it, first member and second member, then 2 2 remains unchanged. हाँ। Another example of symmetric relationship is a cousin on the set of human beings. So the cousins, human beings के sets में cousins are like have a symmetric relationship. If for some xy in R the pair y is not in R, then it is non-symmetric. The relationship is a sister of on a set of non-symmetric. God knows what he means. The following relationship in 1 2 3. Acha. So these are the examples of symmetric relationships in 1 2 3. 1 2 2 1. Because if you reverse them, हाँ। उसका reverse available है. 3 2 and 2 3. 1 3 and 3 1. And 2 and 2. 2 and 2 को तो उल्टा करो सेम ही रहता है ना. सेम रहेगा। So all the reflexive relationships which can be made using 1 2 3 are these. Because if you notice 1 2 का उल्टा भी अवेलेबल है, इसका भी हाँ। उल्टा अवेलेबल है, इसका भी उल्टा अवेलेबल है, इसका उल्टा अपना ही खुद ही होता है। समझ गया। Now read the definition. If and only if the ordered pair is in R, अगर ordered pair relationship में है, then the pair with the member reversed is also in R. तो ये तो बन गया ना 1 2 3 से, ये वाला हाँ, ये तो प्रूव होगा। है ना, ये वाला, ये सही ये दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप हाँ। बिकॉज इस दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशनशिप। ये है एक, लेकिन इसका खुद ही कंटेन्ड है ये। समझ आ गया। बढ़िया है ना ये। हाँ, ये सब। दिस इज नॉट, दिस इज सेक्शन नंबर, हम्म, इक्वेशन नंबर मतलब। समझ गया। लुक एट दिस, इसका 2 3, ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक हाँ। क्योंकि इसका उल्टा कहाँ अवेलेबल है। करेक्ट। 3 3 3 1 3, सॉरी, ये दोनों है बट पूरा नहीं है। हाँ। इन दोनों को रिवर्स कर लो, ये दोनों तो बना रहे हैं ना सिमेट्रिक रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट। बना रहा है, हाँ। बट ये दोनों नहीं बना रहे। ये भी सिमेट्रिक ही है बाय द वे। हम्म। अगर एक ये लिख देता ना यहाँ पे 3 2, हम्म, तो ये भी बन जाता, क्योंकि 2 3 का उल्टा भी अवेलेबल हो जाता। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। टेल मी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। नहीं, समझ गया। इजी है, हाँ। उससे समझ में आया क्योंकि रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। क्लियर है। ओके।
Let's go to the last one, हाँ which is transitive. ट्रांजिटिव में दो रिलेशनशिप होंगे, उनमें से कुछ कॉमन होगा, वो कॉमन हटने के बाद फर्स्ट और थर्ड में भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. ओके मतलब जैसे कॉमन फ्रेंड नहीं होता रियल लाइफ में. हाँ होता है आई एम अ फ्रेंड ऑफ मोहित एंड मोहित इज योर फ्रेंड, देयरफॉर गर्वित एंड रोहित आर फ्रेंड्स. हाँ ठीक है ये ट्रांजिटिव है. समझ गया आइए देखते हैं कैसा एग्जांपल आता है. हाँ जी. A relationship is transitive if and only if all the ordered pairs x, y and y, z, अगर एक ये रिलेशनशिप है हाँ और एक ये रिलेशनशिप है, तो उससे रिलेशनशिप एक्स जेड भी आ जाए, वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है बड़े वाले एग्जांपल देखें. हाँ सो 1 and 2 आर रिलेटेड, 2 and 3 आर रिलेटेड एंड 1 and 3 आर ऑल्सो रिलेटेड. तीनों इंक्लूडेड है. क्लियर ट्रांजिटिव. 1 and 2 है आर इंक्लूडेड. ओके, सो ये तो हो गया सिमेट्रिक वाला, उल्टा रिवर्स्ड है. हाँ So 1 and 2 are related, 2 and 2, and so 1 and 1 are also included. तो इसलिए टू टू भी हो गया फिर Exactly. 2 2 तो होना ही था. हाँ बट अगर मैं इसको ध्यान से दे दूं देखूं, तो दिस रिलेशनशिप इज सिमेट्रिक ऑल्सो बाय द वे, क्योंकि हम्म, उल्टा भी अवेलेबल है. 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा है 2 2 का. सो दिस रिलेशनशिप टू मी, अगर ये बनाया इन्होंने 1 2 से, हम्म, अगर ये रिलेशनशिप इन्होंने 1 2 से बनाया है सिर्फ, हाँ तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स भी हैं, 1 1 और 2 2. करेक्ट तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया. हम्म, और रिवर्स मेंबर्स भी अवेलेबल है. 1 2 का 2 1 भी अवेलेबल है. 1 1 में रिवर्स सेम रहता है, 2 2 में रिवर्स सेम रहता है. हाँ तो ये सिमेट्रिक भी है. और क्योंकि 1 और 2 का रिलेशनशिप है और 2 और 1 का रिलेशनशिप है, इसलिए 1 और 1 का रिलेशनशिप भी और 2 2 का भी है. तो दिस फंक्शन रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. आगे समझ अग्रीड. हम्म नाउ सी, इज दिस रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव? नहीं ये नहीं होगा है. 1 1 2 2 3 3 तीनों ऑर्डर्ड पेयर है. ओ अच्छा अच्छा भाई ओके रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं मैं. हाँ ठीक है आया समझ में? ये सब लेट्स चेक इट फॉर सिमेट्रिक. क्या रिवर्स अवेलेबल है? 1 2 का अवेलेबल है रिवर्स, देखें. 2 1 है. 1 2 का 2 टू 1 है थ्री का 2 3 का उल्टा देखते हैं, 3 2 है. हाँ 1 3 का उल्टा है. 1 1 का उल्टा वही रहता है. 2 2 का उल्टा वही रहता है. 3 3 का. सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो. हाँ करेक्ट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. अब ट्रांजिटिव का चेक करें. हाँ ये सब 1 is linked to 2, 2 is linked to 3, and therefore 1 is linked to 3 included है. 2 is linked to 3 and 1 is linked to 3. अच्छा, इनका तो कोई नहीं बनेगा. अब इन दोनों को देखते हैं. 1 is linked to 3 and 3 is linked to 2. So 1 is linked to 2 है. या ये भी हाँ कह सकते हैं ये वाला भी है. ठीक है तो मतलब थर्ड रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है. अगर दो का रिलेशनशिप है, उनकी वजह से जो तीसरा है वो भी एग्जिस्ट करता है. हम्म, तो ये ट्रांजिटिव भी है.
इसको देखो, 2 is linked to 3 and 3 is linked to 2. हाँ तो इसने क्या बना दिया? 2 is linked to 2. Sorry, हम्म ये this has to be a different number. Had this been 4 and he had written 2 comma 4, तब मैं मानता ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में है x कॉमा y, y कॉमा z, कॉमा y एक्स कॉमा वाई x जेड। अलाउड नहीं है। ठीक है अग्रीड? ये सब। आ गया ना समझ में? हाँ यही है भाई, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। Tomorrow this is what we will do. We will do now questions on this topic, जिसमें आता है ना, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब या तो ये ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या तीनों होगा या दो होगा या तीनों होगा हाँ या तीनों ही नहीं होगा। हाँ तो वी विल डू टेस्टिंग ऑफ द गिवन फंक्शंस अगेंस्ट दीज थ्री रिलेशनशिप्स। ठीक है। होपफुली एज अ कॉन्सेप्ट इट इज पार्ट ऑफ योर ब्रेन नाउ। हाँ Maybe 80%, 20% still we may have to practice, which will only come when we do questions. ठीक है सर। As a concept, I hope it brings clarity in your हाँ mind now. क्लियर है। हाँ Not very difficult. काफी easy था अगर हम थोड़ी सी इंग्लिश को ध्यान से पढ़ लें तो। करेक्ट।